Very good evening, everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I am Anaga representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about sales process in Tally Prime. Before moving ahead to the today's topic, let's take a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations and developments. We are also into the multiple softwares, that is Tally Prime, SAP B1, Bitrix 24 CRM and Skill India. So now we are welcome our speakers. So the presentation will be conducted by Ms. Sonali. So Sonali, are you here? Yes, ma'am. Okay, and the live demonstration will be done by Ms. Payal. So Payal, are you here? Yes, ma'am. Okay, and the resource person, Mr. Bhagwati Dandaria. Sir, are you here? Yeah, I am available. Thank you, Anna. Okay, welcome all of you. So I request Sonali and Payal to start the presentation. Yes, ma'am. Hello, ma'am. My screen is visible? Yeah, it's visible. Okay. Hello. Good evening, everyone. Myself, Sonali, representing on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of the management and entire the team of Rajlakshmi Solutions, I would like to welcome all the participants present here. So moving ahead, our today's topic is a sales process in Tally Prime. So sales process in Tally Prime, the sales of goods and service refers to the exchange of a product or service for money. The sales of goods involve the transfer of physical items, while the sales of service involves the transfer or intangible items such as knowledge or expertise. Once the goods or service are sold, you need to record those transactions. After recording the transactions, you can print the sales invoice, you can configure your sales voucher and cancel the vouchers if needed. Any modifications made to the recorded transactions can also be tracked. अगर कोई भी हम गुड्स एंड सर्विस अगर सेल्स करते हैं तो हम उसका रेफर एक्सचेंज में प्रोडक्ट एंड सर्विस देते हैं। तो जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उन्हें हमें रिकॉर्ड करना जरूरी है। जैसे जो भी हम सेल्स के ट्रांजेक्शन अगर रिकॉर्ड करते हैं वो ट्रांजेक्शन हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं वो टैक्स इनवाइस के सेल्स इनवाइस के टैक्स इनवाइस थ्रू। अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन लेवल पे हमें वो ट्रांजैक्शन अगर मॉडिफाई करना है या उसको कैंसिल करना है तो वो भी हम यहाँ पे टैली प्राइम में वो कैंसिल कर सकते हैं। अगर कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद अगर वो ट्रैक करना है तो वो हम ट्रैक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सेल्स प्रोसेस में आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। एवरी बिजनेस इन्वॉल्व्स द सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज which can be either cash or credit sales. As part of the business practice, you can print the invoice and share it with your customer. In case you have a record of sales which is incorrect, you can cancel such vouchers. बिजनेस में हम अगर सेल इन्वॉल्व करते हैं तो उस सेल जो इन्वॉल्व करते हैं गुड्स एंड सर्विस के अगेंस्ट, तो वो हम एक तो कैश और क्रेडिट सेल के अगेंस्ट कर सकते हैं। तो वो सेल्स का प्रिंट कस्टमर को शेयर करना ये हमारा बिजनेस का एक पार्ट है। तो यहाँ पे अगर हमारा वो सेल इनवाइस अगर इनकरेक्ट है तो वो हम कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। टैली प्राइम प्रोवाइड यू कैन विद द ऑप्शन टू रिकॉर्ड सेल्स of goods and services in different modes. While recording for the sales of goods, you can record such a sale using item invoice mode. In item invoice mode, you can provide an item, quantity, and rate details. Similarly, you can use the accounting invoice mode if you are selling services. In addition, Tally Prime also has a voucher mode, which you can use to record both sales of goods and services
What's more, Tally Prime offer multiple reports that help you to understand the sales performance of your business. They debook display sales for a specific dates or period. On the other hand, the sales register display your company monthly sales. टैली प्राइम में हमें एक ऐसा ऑप्शन दिया है कि अगर हम कोई भी सेल्स का ट्रांजैक्शन अगर करते हैं गुड्स एंड सर्विस के अगेंस्ट, जो भी हमारा सेल्स का ट्रांजैक्शन होता है तो वो हम टैली में रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो हम सेल्स का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर सकते हैं एक तो आइटम इनवाइस के अगेंस्ट, सेकंड हम कर सकते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग इनवाइस के अगेंस्ट, और थर्ड पॉइंट है हमारा एक वाउचर मोड के अगेंस्ट। तो यहाँ पे आइटम इनवाइस के अगेंस्ट हम वहाँ पे आइटम यूज करके सेल्स इनवाइस जनरेट कर सकते हैं। उसमें हम आइटम, क्वांटिटी, रेट की डिटेल्स डाल के हमारे आइटम इनवाइस यहाँ पे जनरेट हो जाता है। सेकंड है हमारा अकाउंटिंग इनवाइस। अकाउंटिंग इनवाइस में अगर हम कोई सर्विस सेल करते हैं तो यहाँ पे हमारा वो मेंशन होगा पूरा सेल्स का प्रोसेस अकाउंटिंग इनवाइस में। अगर गुड्स और सर्विस अगर हम सेल करते हैं तो यहाँ पे हम वाउचर मोड के अगेंस्ट उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर सेल्स का हमें रिपोर्ट for credit sales, in Tally Prime, you can record sales of goods or stock item using the item invoice mode and specify the stock item details, quantity and rate. जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे अगर कोई भी गुड्स हम सेल करते हैं तो वो हम आइटम इनवाइस मोड में उसको सेव कर सकते हैं। तो आइटम इनवाइस मोड में हम अगर कोई भी सेल्स ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पे हमारा स्टॉक आइटम की डिटेल्स, क्वांटिटी और रेट यहाँ पे पूरा मेंटेन हो जाता है। सेकेंड स्लाइड है रिकॉर्ड सेल्स ऑफ सर्विसेज, अकाउंटिंग इनवाइस मोड। व्हेन रिकॉर्डिंग द सेल्स ऑफ सर्विसेज, चूज कैश और बैंक फॉर कैश सेल्स एंड पार्टी लेजर फॉर क्रेडिट सेल्स in Tally Prime. Record sales of services and the total amount using the accounting invoice mode. An accounting ledger is not required as there is no stock item to allocation. यहाँ पे अकाउंटिंग इनवाइस में अगर हम कोई सर्विसेज अगर सेल करते हैं तो यहाँ पे हम उसको मेंटेन करेंगे अकाउंटिंग इनवाइस मोड पे। तो यहाँ पे हमारा कोई स्टॉक आइटम यूज नहीं होगा, सर्विस का जो भी लेजर रहेगा उसका सर्विस का लेजर और अपना वो सर्विस का जो भी टोटल अमाउंट रहेगा उसके अगेंस्ट हम अकाउंटिंग इनवाइस मोड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। So thank you. Now it is the time for the live demo. I request to Payal proceed ahead for the live demonstration. Thank you. Thank you, Sonali ma'am, for the nice presentations. Ma'am, my screen is visible? No, not it's visible, not. Yeah, it's visible now. Okay, ma'am. But Tally is not visible. Yeah, ma'am. now Tally, yeah, it's visible. Okay, ma'am. Thank you. Hello, everyone. Myself, Payal Mistry. I am representing live demo on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. जैसे कि अभी आपको सोनाली मैम ने बताया सेल्स प्रोसेस इन टैली प्राइम के रिलेटेड। सेल्स प्रोसेस इन टैली प्राइम क्या होता है, जैसे कि अभी सोनाली मैम ने बताया एज अ वाउचर, आइटम इनवॉइस एंड अकाउंटिंग इनवॉइस से रिलेटेड, वो आपको मैं अभी प्रेजेंटेशन लेके बताने वाली। यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे वाउचर्स में जाती हूँ मैं सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक आइटम है,
जैसे कि आप अगर आपको कुछ भी क्रिएट करना होता है तो आपको अभी टैली प्राइम में एक शॉर्टकट दिया हुआ है, आप यहाँ पे एंट्री लेवल से भी क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज आपको यहाँ पे क्रिएट एंड अल्टर का ऑप्शन दिया है, आप वहां से कर सकते हो। अभी मैं यहाँ से क्रिएट में से करती हूँ। सबसे पहले मुझे लेजर क्रिएट करना है। सबसे पहले मैं एक पार्टी क्रिएट करती हूँ। यहाँ पे मैं एक पार्टी ले लेती हूँ आनंद ट्रेडर्स करके। सनरे क्रेडिटर्स में आएगा। आप यहाँ पे एक पार्टी ले सकते हो। इसके बाद आपको यहाँ पे यहाँ इसका एड्रेस, स्टेट, कंट्री, यहाँ पे मैं एड्रेस महाराष्ट्र लेती हूँ। यहाँ पे आपका जो भी पिन कोड है वो जीएसटी नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है एंड इसे सेव करना है एज इट इज। आपको इसके बाद सेल्स वाउचर, परचेज वाउचर, आपके जितने भी लेजर है या स्टॉक आइटम है एज इट इज आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। एग्जाम्पल सबसे पहले मैंने अभी एक पार्टी क्रिएट कर दिया। पार्टी क्रिएट करने के बाद अभी मैं यहाँ पे वाउचर्स में जाती हूँ। यहाँ पे मैं आज की डेट की एक एंट्री करती हूँ, अगस्त 23 वाउचर नंबर 2 करके। यहाँ पे मैं एक आनंद ट्रेडर्स करके मेरी जो पार्टी है मैं वो ले लेती हूँ। यहाँ पे अगर आपका डिलीवरी नोट नंबर है, डीओसी नंबर है, डेस्टिनेशन है या फिर आपका अदर कोई भी डिटेल, ऑर्डर नंबर है, व्हीकल नंबर है, जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे मुझे सेल्स का लेजर क्रिएट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्टली यहाँ से शॉर्टकट है, अभी आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से मैं सेल्स का लेजर क्रिएट करती हूँ। सेल्स अकाउंट्स करके अंडर मेरा यहाँ पे आएगा सेल्स अकाउंट, नॉट एप्लीकेबल। इसके पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब भी आप सेल्स, परचेज कोई भी एंट्री करते हो तभी एंट्री लेवल पे आपको स्टॉक आइटम या फिर आपका जो भी लेजर है, परचेज, सेल्स अकाउंट, जो भी लेजर, उसमें से दो में से किसी एक में आपको रेट मेंशन करना। अगर आप दोनों में रेट मेंशन करते हो तो आपका जो भी सीजीएसटी, एसजीएसटी का लेजर ले रहे हो तो आपका वो वहाँ पे प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं होगा और वो ओवरराइड हो जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पे सेल्स के वाउचर में यहाँ पे मैं यहाँ पे रेट नहीं ले रही हूँ, मैं डायरेक्टली स्टॉक आइटम में रेट लूंगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है एज पर कंपनी ग्रुप, यहाँ पे मैंने एसजीटी यहाँ सेव कर दिया। अभी मैं यहाँ पे एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं लेती हूँ स्टॉक आइटम है मेरा हेडफोन्स करके। यहाँ पे प्राइमरी, यहाँ पे आपको जो भी कैटेगरी आती है वहाँ पे आपको लेनी है। यूनिट्स में आप डायरेक्टली यहाँ से भी यूनिट्स क्रिएट कर देते सकते हैं। यहाँ से एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे पीसीस लेती हूँ। यूनिट यूकेसी कोड में आ गया पीसीस। अगर आपको डेसिमल जो भी लेना है, एग्जांपल में यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल 2 लेती हूँ। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था स्टॉक आइटम में रेट में मेंशन करती हूँ। यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल एज पर कंपनी स्पेसिफाइड डिटेल यार आपका यहाँ पे जो भी HSN कोड, एग्जांपल मेरा HSN कोड ये है। स्पेसिफाइड डिटेल जीएसटी रेट एंड डिटेल्स में आएगा स्पेसिफाइड डिटेल टैक्सेबल जीएसटी रेट 18% ले लेती हूँ। इन्हें एज इट इज ऐसे सेव कर लेती हूँ। अभी मैंने क्वांटिटी 6 लिया है, उसका रेट हेडफोन्स का रेट है 950। ओके, यहाँ पे मैं वही ले लेती हूँ। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले यहाँ पे आपको हेडफोन्स का यहाँ पे एज पर मास्टर कंपनी, मतलब आपने हेडफोन्स में ऑलरेडी रेट मेंशन किया है, इसकी वजह से आपको यहाँ पे वो शो कर रहा है। अभी आपको यहाँ पे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का लेजर क्रिएट करना है। यहाँ से मैं शॉर्टकट से क्रिएट करती हूँ। सीजीएसटी, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप्स ऑफ ड्यूटी में जीएसटी आएगा, सीजीएसटी टैक्स ऑफ टाइप एंड एज इट इज सेव। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे वो ऑटोमेटिकली ले लिया उसने रेट। अभी एज इट इज में एसजीएसटी का लेजर पास करती हूँ, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, एसजीएसटी एंड अदरवाइज सेव। अगर आपका कोई अदर कंट्री का पार्टी है तो वहाँ पे आपको यहाँ से डायरेक्टली क्रिएट करके बता दो आईजीएसटी का लेजर, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी एंड आईजीएसटी। यहाँ पे अभी हम लोग का सेम महाराष्ट्र का पार्टी, इसलिए मैं यहाँ पे एसजीएसटी एंड सीजीएसटी ले रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे वो इनवॉइस में कैसे सेव हो गया और कैसे वो प्रॉपर रेट भी पकड़ रहा है। तभी मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ। अब हम लोग इसको स्टॉक आइटम वाइज यहाँ पे प्रिंट देखेंगे तो देखिए हम लोग का इनवॉइस ये टाइप से यहाँ पे शो करेगा। अगर आपने यहाँ पे उसका एड्रेस, पार्टी का एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो एज इट इज आपको यहाँ पे ऐसे ही लेजर शो करेगा। अभी हम लोग अभी यहाँ पे मैं चेंज मोड करती हूँ।
अभी यहाँ पे मैं चेंज मोड करती हूँ एंड यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस लेती हूँ। अकाउंटिंग इनवॉइस लेती हूँ। अकाउंटिंग इनवॉइस हम लोग का सर्विसेज है। सर्विसेज में हम लोग सर्विसेज है। अभी यहाँ पे मैं एक पार्टी ले रही हूँ, एक पार्टी क्रिएट करती हूँ मैं यहाँ पे सर्विसेज में। जैसे कि यहाँ पे सर्विसेज, यहाँ पे मैंने ले लिया वेबकॉन से। ये मेरा आएगा सेंट्री। यहाँ पे ये यहाँ अगर आपका इसका एड्रेस है, जीएसटी नंबर या फिर स्टेट कोड, जो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एंड अदरवाइज सेव कर सकते हो एज इट। यहाँ पे भी आपको आपका जो भी डिटेल्स है, डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल, एक्सपोर्ट डिटेल, जो भी आपका एज इट इज मेंशन करना है। अभी यहाँ पे मैं पर्टिकुलर में एक पर्टिकुलर में क्रिएट कर रही हूँ। जैसे कि मेरा एक इंटरनेट है, वो एक सर्विसेज है मेरा, तो यहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज, तो मेरा आएगा इनडायरेक्ट इनकम में। इनडायरेक्ट इनकम ये मेरा इनकम है। ओके, यहाँ पे आएगा नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे मैं एज इट इज एज अ ग्रुप कंपनी, ये यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल, क्योंकि हम लोग का सर्विसेज है इसलिए यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल आपका जो भी टैक्स रहेगा 12%, 18%, यहाँ पे मैं 12% इसका रेट ले लेती हूँ और यहाँ पे सर्विस ले लेती हूँ, क्योंकि मेरा टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस है। यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे 12,000 का मेरा सर्विस है, मैंने प्रोवाइड किया, सर्विस प्रोवाइड किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने रेट मेंशन किया हुआ था, इसलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो ले लिया है वहाँ पे। अभी मैंने ये ले लिया। उसके बाद आप यहाँ पे CGST, SGST का आपका जो भी लेजर है, एज इट इज आप लेजर लोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, आप देख सकते हो कि आपका एज इट इज ये हो गया सेल्स इनवॉइस। आप ऐसे अकाउंटिंग इनवॉइस का एंट्री कर सकते हो एज अ वाउचर। अभी हम लोग लेते हैं एज अ वाउचर। एज अ वाउचर में हम लोग का गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं रहता है। एज अ वाउचर है जिसमें नॉर्मल वाउचर एंड नॉर्मल वाउचर है जिसमें डेबिट क्रेडिट नोट आपको मिल जाएगा, लेकिन सॉरी डेबिट क्रेडिट मिल जाएगा। आप इसमें चाहे तो इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते। यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक पार्टी ले लिया आनंद ट्रेडर्स करके, एज इट इज जो पार्टी है मेरा, इसका अमाउंट मैंने 100 ले लिया। यहाँ पे क्रेडिट में मेरा सेल्स ले लेती हूँ। अगर आपका कोई स्टॉक है यहाँ पे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे वो स्टॉक मेंटेन भी कर सकते हो। जैसे कि मेरे यहाँ पे 10 है तो मैं यहाँ पे 10 क्वांटिटी ले लेती हूँ, उसका प्राइस जो होगा वो आ गया। अदरवाइज अगर आपको स्टॉक मेंटेन नहीं करना है तो एंड ऑफ लिस्ट करके आप एज इट इज एंट्री सेव कर सकते हो। एंड अभी मैं आपको बताने वाली हूँ क्रेडिट नोट की एंट्री। तो जब क्रेडिट नोट जब हम किसी को सेल करते हैं एंड उसी प्रोडक्ट को कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो हम कस्टमर को हमें सेल्स वाउचर देता है, उसके अगेंस्ट में हम उन्हें क्रेडिट नोट देते हैं एज इट इज। वही मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। यहाँ पे अदर वाउचर्स में गई, क्रेडिट नोट लिया मैंने यहाँ पे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। अभी यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, मेरा एक पार्टी ले लेती हूँ। जैसे कि मेरा एक पार्टी है आनंद ट्रेडर्स, राइट, और मैंने यहाँ पे सेल्स अकाउंट ले लिया। तभी आपको मैं पहले बता देती हूँ, जैसे कि सेल्स इनवॉइस सबसे पहले मैंने एक आनंद ट्रेडर्स करके एक बिल पास किया था। जैसे कि एक मेरा बिल है जो मैंने 6 क्वांटिटी उनको सेल किया था, बट उनकी 3 क्वांटिटी प्रॉपर है, मतलब 3 हेडफोन्स प्रॉपर थे, लेकिन 3 हेडफोन्स में कुछ प्रॉब्लम आया तो अभी हम लोग को रिटर्न करें तो उसके सामने हम लोग क्रेडिट नोट पास करेंगे। तो कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे वाउचर्स में जाती हूँ। वाउचर्स में जाने के बाद मेरा एज इट इज जो बिल का डेट था वही मैंने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद मेरा जो एज इट इज पार्टी था वो लिया है, सेल्स अकाउंट मैंने हेडफोन्स लिया था। तभी आप देख सकते हो कि मैंने 6 क्वांटिटी थी, लेकिन मेरी 3 ही क्वांटिटी प्रॉपर है और 3 क्वांटिटी मुझे रिटर्न आई है। तो यहाँ पे 3 क्वांटिटी, उसका रेट 950 है, वही यहाँ पे आएगा। यहाँ पे 2 यहाँ पे अमाउंट आ गई, सॉरी
credit note, Anand Enterprises, sales account, headphones, 3 quantities, 950, control A, and as it is मैं यहाँ पे CGST and SGST, यहाँ पे मैंने CGST and SGST ले लिया है। यहाँ पे प्रोवाइड GST डिटेल, यहाँ पे जब आप क्रेडिट नोट पास करोगे तभी आपको रीजन फॉर इश्यू नोट का आपको रीजन पूछेगा कि आपने ये क्यों रिटर्न किया था। आप यहाँ से जो भी रीजन है, आपका सेल्स रिटर्न हुआ है या फिर पोस्ट सेल डिस्काउंट के रिलेटेड है या फिर अदर कुछ भी रहेगा, तो एग्जाम्पल अभी तो मैं यहाँ पे अदर डाल रही हूँ, यहाँ पे उसका बायस डेबिट नोट का यहाँ पे नोट नंबर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा वो इनवॉइस नंबर था 1 और उसके सामने मैंने पास किया था 12 अगस्त 23 डेट। यहाँ पे जब मैं उसे सेव करूंगी तभी आप देख सकते हो कि क्रेडिट नोट की एंट्री मैंने पास की है। अभी आप क्रेडिट नोट का इनवॉइस भी दे सकते हो। ये देखिए मेरा क्रेडिट नोट का इनवॉइस इस तरह से दिखेगा। आप यहाँ पे बैंक डिटेल है या फिर आपका कोई भी अदर टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी यहाँ पे ये इनवॉइस में मेंटेन कर सकते हो। थैंक यू सो मच। Thank you, Sonali and Payal, for your presentation. So it's a time for overview of this session. So it's over to you, Bhagwati sir. Yeah, thank you, Anga. Thank you, team. So myself is Bhagwati Dhandaria. So today's session is sales processes in the Tally type. So most of the processes in the sales, people are doing only sales invoice in the Tally time, but in terms of the other processes like sales order processes, delivery note and all these stuffs, you can maintain in the Tally time. That is very simple way. For example, आपके पास अगर 100 क्वांटिटी का ऑर्डर है और आपके पास अवेलेबल क्वांटिटी 30 है और आप उसको डिलीवर करना चाहते हो, तो यू कैन पास द डिलीवरी नोट, यू कैन जनरेट द डिलीवरी नोट, यू कैन पास द डिलीवरी नोट। यू वांट टू जनरेट एट सेम टाइम यू वांट टू जनरेट द इनवॉइस, यस यू कैन जनरेट द इनवॉइस। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरा पूरा स्टॉक एक बार डिलीवर हो जाए उसके बाद में मैं जनरेट करना चाहूँगा, तो यस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल टू टैग मल्टीपल डिलीवरी नोट थ्रू आउट द इनवॉइस। और कई प्रोसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आप डिलीवरी नोट बनाना ही नहीं चाहते, जस्ट यू वांट टू जनरेट द sales order, then you want to direct generate a sales invoice. Yeah, this is also possible. And next scenario is you want to generate a sales invoice only. Most of the people are doing same. So वो भी आप कर सकते हैं। तो काफी Tally Prime को इतना इजी टू यूज किया गया है और इतना फ्लेक्सिबल किया गया है ताकि आप अपने सेल्स प्रोसेस को प्रॉपर मेंटेन कर सकें। ये तो प्रॉपर मेंटेन करने की बात होगी, लेकिन इससे रिलेटेड हम मेंटेन करके क्या करना अचीव करना चाहते हैं। वी वांट टू चेक द रिपोर्ट कि एक 100 के सामने मैंने कितनी क्वांटिटी डिलीवर कर दी है, कितनी मेरी पेंडिंग है। इस टाइप की जो रिपोर्ट्स है वो सभी को हम यहाँ से मेंटेन कर पाते हैं और देख पाते हैं, और उसके बेस पर हम अपना प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर, हम अपनी प्रोडक्शन प्लानिंग कर सकते हैं। अगर हम ट्रेडर हैं तो हम अपनी परचेज ऑर्डर उसी हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, लॉट ऑफ सिनेरियोज आर देयर जहाँ पर इजी गोइंग यू कैन यूज Tally Prime in your sales processes. So you can use these features, enjoy with them. If you need any support, yes, our team is here for your support. You can connect with our YouTube channel जहाँ पर ये वीडियो सभी आपको मिलेंगे अपकमिंग टाइम में। और हमारे YouTube चैनल जस्टिस लाइक एकेडमी ऑफ द टैली, जहाँ पर आप जाकर के सब्सक्राइब करें। पूरे के पूरे YouTube चैनल पर आपको मल्टीपल फीचर्स आपको वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया गया है वीडियो के थ्रू, और आपको यूटिलाइज कर पाएंगे, आप यूज कर पाएंगे, सीख पाएंगे और आप अपने बिजनेस को स्मूथ रन कर पाएंगे। दिस इज ओवरऑल आइडिया ऑफ द सेशन। सो थैंक यू वेरी मच एंड Anga is over to you. Thank you so much, sir. So this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to the our social media. So now we'll wind up the session. Thank you, everyone.